Okay, good evening, everybody. We will start with our class. I'm sharing the screen. I hope my screen is visible to you all. Is it? यस मैम विजिबल है। Okay. ठीक है. So अभी तक ना हमने we have completed our syllabus. Okay. Now what we do is that we do a comprehensive revision. ठीक है. सो इसमें ना इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग अ जेनरिक रिविजन की जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हम उसी को वापस से पढ़े व्हाट आई एम ट्राइंग इज कि हम कुछ नए पॉइंट्स ऐड करें. तो जैसे हमने पब्लिक गुड्स के बारे में वी हैव स्टडीड व्हाट आर मेरिट गुड्स व्हाट आर पब्लिक गुड्स व्हाट आर एक्सटर्नैलिटीज. Okay, and we have discussed it in our classes as well. Now going forward I would like ki we just not only revise those topics, we also add in some new perspective, okay, from the economics point of view, from the other point of views, because हमने एक बारी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. ओवरऑल जो बेसिक नॉलेज है वो हमारा कवर्ड है. ऑफलाइन क्लासेस में वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल थिंग्स. So overall revision, how to approach strategy, all of that is clear. Now going forward we would revise it and we would also try कि सिर्फ plain ऐसा revision नहीं हो जो पढ़े, will also try to add in information. So from the latest newspaper, from economics point of view, from development point of view, I've tried it to add those points as well. Okay, in the topic going forward. So this is our first unit, foundations, and this is when we are, this paper is all about applying strategic management to healthcare and education. The first question that was in the class as well asked that why education and healthcare only when we are studying strategic management, we are already applying it to our marketing, finance, how we are taking overall decision, our recruitment, all has to be strategized and made in a certain way. However, when we study this application based paper, एक सवाल आता है कि हम हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ही इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं. एंड यू डू ऑल्सो हैव दैट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन स्टार्टअप्स और इंटरनेशनल बिजनेस. सो बेसिकली क्या होता है कि जो जेनरिक चीजें आप पढ़ो ना, उसकी जब आप स्पेशल एप्लीकेशन पढ़ते हो, not only that concept gets more clearer to you, it's also with an orientation of innovation to finding out some social solution to it. Okay, so healthcare and education, as we know, these are not only your social goals, these are what makes the economy run. And when we understand it, we get to know what is human capital. As we have discussed many times, what is human capital? Human capital is health into एजुकेशन इनटू स्किल्स. इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है? वी हैव पॉपुलेशन. हम दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं एट दिस पॉइंट, एंड वी विल बी for a long time if you look at the projection as well. So now what we do, so when we were kids, we were the second most populated country. China was the first one. Now we have overtaken China as well. So जो सबसे ज्यादा हमारे पास है, that is our population. Also demographic dividend is on our side. Now what is demographic dividend? I have discussed in class and in last online lecture. So now you will have to Google it a bit if you still don't know. Okay, I'll tell you. Demographic dividend is a phase in a nation where the maximum amount of population is young. यूथ आपके पास सबसे ज्यादा होता है. एक फेज होता है नेशन के पूरे लाइफ टाइम में जब जो यंग पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, 30 से कम के लोग हैं, वो ज्यादा होते हैं पॉपुलेशन में नंबर कंपेयर टू अदर कंट्रीज लाइक जापान हु हैव एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा, रिटायर्ड पॉपुलेशन ज्यादा एज कंपेयर टू young working population. Okay, so now to for us this, human capital is extremely important because अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है, वी आर हैविंग हेल्दी एजुकेटेड स्किल्ड इंडिविजुअल्स,
we're not doing a service to this country, we're doing a service to the world. So यहाँ पे spending on healthcare and education, it is not consumption, it is an investment. Healthier, better educated people, we will have innovate faster, adapt more to economic shocks. And economic shocks kya hote hain? We have read up something about the VUCA environment. VUCA environment is basically the market is volatile. Okay, so now since we have covered the main topics and all, we are going more in depth with our revision. So you would be hearing some new terms, new ideology. So एक होता है ना कि how you can approach a topic, one topic from different wavelengths. Okay. So this gets really interesting, and I have my bachelor's in economics. So I think many of you have also done BCom and your bachelor's in economics. So it gets even more interesting for you to discuss these topics. Okay. So as a healthier, better educated population is there, it innovates faster. We were discussing about VUCA environment. VUCA environment is basically refers to an environment that is volatile, unpredictable, पता नहीं है क्या हो जाएगा. So the style of management that happens in VUCA environment, अगर आपने traditional first year first semester याद करो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब पढ़ा होगा तो आपने सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट पढ़ी होगी जो टेलर ने दी थी. उसके बाद में फिर आपने बिहेवियरल अप्रोच पढ़ा होगा कि पहले कैसे था कि यू वर लाइक लेबर मैनेजमेंट से कैसे एचआरएम का भी एवोल्यूशन हुआ है, पर्सनल मैनेजमेंट सुना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड जो आपने लास्ट अप्रोच पढ़ा होगा दैट वुड बी कंटीजेंसी अप्रोच. बिकॉज at the end we say कि there is no one right way to go. We can't be say कि classical approach ही सही है, behavioral ही सही है, या here are like एक टाइम के बाद आ जाता है कि जो उस टाइम की रिक्वायरमेंट है, कंटीजेंसी है उस टाइम की, वो सही अप्रोच है आपकी. Because the environment that we operate is uncertain. If we have a population that innovates faster, that will adapt more to those economic shocks. Right now, are we in an economic shock? Yes, we are. You see the entire Iran-US war thing that is going on, the shortage of LPG that is going on. It's not COVID is one big example. If you look at it, there are certain micro, major, or mid level economic shocks happening almost all through the year. So it was a pandemic, so it is global, but and we often quote it as an example, which is completely valid. But right now, also, we are in mid of an economic shock. The restaurant economy is right now, you would see they are struggling for LPG right now. So that is there कि जब एक population पर better educated है, healthier है, skilled है, then it can innovate faster. और जब आप change से, economic shock से अपने आप को effectively shield कर पा रहे हो ना, तो what you are doing, you are kind of becoming invincible. You know कि change is inevitable, change आ रहा है जा रहा है, but you are in a position that you can deal with change, you can make the best use of it, you can innovate faster according to the change, then you are our economic engine becomes undefeatable. अब हम देखते हैं कि ये जो ह्यूमन कैपिटल की हमने बात करी है ना, ह्यूमन कैपिटल की हमने बात करी है, इसका रिटर्न कहाँ कहाँ पे शो अप हो सकता है. ओके, सो सबसे पहले तो इट इज द प्रोडक्टिविटी गेन. A worker who can read instruction, operate machinery, solve problems, and is certainly on its own is more having more autonomy, is definitely more capable. आप अपनी कंपनी में कौन इंसान चाहोगे जिसको आपको सब कुछ सिखाना पड़ रहा है, लाइन से करना पड़ रहा है, या फिर जो खुद से इंस्ट्रक्शंस देख सकता है, मशीन को काम करा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है? डेफिनेटली द सेकंड वन. और अगर हम इलनेसेस की बात करें कि बीमारी है, मेल न्यूट्रिशन है, कोई डिजीजेस है, तो वो तो डेफिनेटली इंटायर आपके प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करेगी ही. ओके, देन यू आल्सो कम टू इनोवेशन कैपेसिटी. इकोनॉमिक ग्रोथ
इस सेंचुरी में is dependent on ideas. And the country that innovates the better, that has the best innovation strategy, जो बिल्कुल out of the box solutions लेके आती है. So we studied about it in our fourth lecture. कि countries like Bangladesh, countries like Brazil, how they are having innovative solutions, how Narayana model worked, how Dr. Devi Shetty brought in a revolution. हार्ट सर्जरी जैसे चीज को उन्होंने अफोर्डेबल कर दिया, अफोर्डेबल इनफैक्ट फ्री में भी कर दिया फॉर मेनी पीपल. कैसे किया? वी हैव स्टडीड इट थ्रू स्ट्रेटेजिक इनोवेशन, है ना? सो जब आप स्ट्रेटेजिक इनोवेशन कर पाते हो, व्हाट डू वी डू? you just you just are in a position that you not only support yourself, your business, but you also do it for the overall society and economic growth. जब हम इसमें बात करते हैं ना कि इनोवेशन की बात आती है कि फिर ये कैसे करेंगे? इनोवेशन वी हैव सीन कि बहुत ही पॉपुलेशन, और ये इतना कम लोग ही क्यों कर पा रहे हैं? हाउ मेनी इनोवेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स डू वी सी अराउंड? क्वाइट अ लॉट, बट नॉट एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन. हर इंसान ही एक ऐसा इनोवेटर नहीं है. मोस्ट पीपल आर फॉलोइंग द ट्रेडिशनल पाथ, टेकिंग द more traveled road. That is a certain kind of education system, एक certain kind of thinking ability चाहिए होती है to be able to innovate. अब जब हम बात करते हैं वो कहाँ से डेवलप होती है? कहाँ से डेवलप होगी? एजुकेशन से. क्योंकि जब आप सर्टेन एरिया में, जब आप बहुत इंटरेस्ट के साथ एजुकेशन ले रहे हो, जब आप बहुत ही, जब आप रेगुलरली अपने आप को अपडेटेड रख रहे हो, यू डेवलप अ सर्टेन वे ऑफ थिंकिंग, और आप उसमें ये कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी नीश स्पेसिफिक. अच्छा, अगर आप मेरे से बात करो क्रिकेट की, ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता होगा शायद से. काफी लोग हैं जिनसे अगर आप क्रिकेट की बात करो, दे वुड नो एवरीथिंग. कब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ. दैट पर्सन इज लाइक, उसको उस नीश में इंटरेस्ट है, उस नीश की वो चीजें करता है. सेम गोस फॉर यू ऑल्सो. जो भी आपको इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में आप और पढ़ते हो, और उसके लिए अगर आप एक क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप कर पाते हो, तो उससे क्या हो जाता है? यू ऑल्सो डेवलप योर इनोवेशन कैपेसिटी, क्योंकि आपको उस फील्ड के बारे में बहुत अच्छे से पता है, आपकी ईक्यू बेटर है. आप द द स्ट्रॉन्गर, जब कोई एक डिपेंडेंसी नहीं है, द सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज, तो क्या होता है कि आप मोर इनोवेटिव हो सकते हैं. अब आप बोलो कि ओके मैम, मेरी थिंकिंग कैपेसिटी तो बहुत अमेजिंग है, लेकिन आई हैव आई हैव टू डू लाइक, पर मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ, मुझे पता ही नहीं होगा. रिस्क लेने की जो अडॉसिटी है, दैट ऑल्सो एक्चुअली penetrates from something which is information and knowledge. क्योंकि बहुत लोगों ने तो वो पाथ ही नहीं एक्सप्लोर किया, पता ही नहीं है कैसे करना है, क्या करना है. जब आप उस नीश में हो, वो पाथ एक्सप्लोर करा, आपकी थिंकिंग एबिलिटी उस तरह से है, देन यू कैन. एंड दिस इज very true for countries with strong education system. You will see they have the maximum amount of patents in the world, maximum number of startups, technological breakthroughs, because of the developed innovation capacities. And in India, we are working heavily on it. If you look at any premier institute in the country right now, they have a incubation center, a startup incubation center. IIM अहमदाबाद की बात कर लो, यहाँ पे आपके IIT दिल्ली की बात कर लो, they all have startup incubation centers are there where you can go with your ideas, fundings provide हो रही है. So ये क्या हो रहा है? This is your amazing innovation capacity that is there and that is happening. So now there is one more thing that you can discuss about in this is like innovation capacity is like also solution to problems. कि एक जेनरिक सोल्यूशन, एक जेनरिक पाथ पे चलने के, जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं उसके लिए हम क्या ये कर सकते हैं. आप देखो स्टार्टअप इंडिया हो रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स चल रहे हैं, बिकॉज एन एंटरप्रेन्योर इट्स लाइक गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू पीपल एज वेल. सो आई कमिंग दैट इज, एंड वो कैसे होगा? व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल, है ना, then only then we can move towards innovation.
तबीयत ही ठीक नहीं है, बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन ही नहीं, स्ट्रगल का फेज है, तो ये चीजें बहुत मुश्किल हो जाती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड अभी हमने डिस्कस करा, सो इट इज दैट एजिंग पॉपुलेशन जो होती है ना अभी हमारे इसमें, वो आगे चल के मे बी विल पीक अराउंड 2040, बट उससे पहले हम कितने हेल्दी हैं, कितने हम स्किल को डेवलप कर सकते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी हैव डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑन आवर साइड। बहुत ही लास्ट ही लेग बचा है इसका, कमिंग बैक टू दिस की आखिरी के 10 साल बचे, हम काफी टाइम से डेमोग्राफिक डिविडेंड में है। इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन इज बेसिकली कि जो एजुकेटेड मदर दे हैव हेल्दियर चिल्ड्रन, वो स्टे इन स्कूल्स फॉर लॉन्गर, उनको पता है द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन, द बेनिफिट्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। तो ये क्या होता है, जो एजुकेशन का इफेक्ट है ना, दैट कंपाउंड्स थ्रू जनरेशन। अमर्त्य सेन की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव है इस टॉपिक पे। सो अमर्त्य सेन, यू नो, इज इंडियाज वेरी फेमस, you know, economist. So he refrains this entire conversation कि development isn't just about GDP or the industrial output. It is about expanding what people can do and what people can be. So his approach is that of capacity. Here he treats this sector, healthcare and education, as fundamental capacity that enables you all other freedom. A person who dies from a preventable disease under the age of 40 was actually denied the capacity to live a full life. Preventable disease से, if somebody dies under the age of 40, तो he was denied of his life. And a child who never learned to read or write has been also denied of the capacity to participate meaningful in the democracy, in the society, and access to information, access to your employment forums, all of it, pursuit of employments, all of it is through your very basic, at least, sector of education and health. So this isn't just about policy. This is not only about philosophy. It is not only about policy. It is a very basic requirement, and it is a very important, it's like a fundamental policy. It's a policy teeth. And if capabilities are the goal, then service delivery must focus on something which is actual access. लोगों को access कितना मिल रहा है, उसमें क्या होता है कि वन हॉस्पिटल 50 किलोमीटर अवे है, देयर इज नो ट्रांसपोर्ट, लाइक, तो क्या हो रहा है कि people who are रास्ते में, we have heard that people lose their life. So this is what this is again, that they have been denied of their capacity of a full life. इसमें now if you look further about it, so there is something which is called कि why the market fails here. Okay, why is it that इकोनॉमिक्स, लाइक, होता है ना कि अगर यहाँ पे जो क्लासिक हैंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है, वो यहाँ पे क्यों नहीं ये कर पाता है? Because we have to understand why government intervenes in healthcare and education, and why market अपने से, because market is what operating only with the domain of profit. अब आगे चल के we have three concepts that we have already discussed and we have already done in our classes. We'll do it again here for a very good revision. Okay, so public goods की बात करेंगे, ठीक है? Public goods, these are purely defined on two characteristics. अभी तक तो आपको याद होना चाहिए, non excludus and non rivalry. Once provided, it cannot prevent anyone from benefiting. आप किसी को exclude नहीं कर सकते हो. National defense हो गया, street lighting हो गया. Non rivalry है कि one person's consumption does not reduces other person's availability for the same. क्लीन एयर की बात होगी, आप कुछ अब ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि अगर एक को मिल गया तो दूसरे के लिए कम बचे, ऐसा नहीं, ठीक है? जो आपका इकोनॉमिक्स का मार्केट है, ओके, वो पब्लिक गुड पे क्यों नहीं ये कर पाता? सबसे पहले द प्रॉब्लम इज ऑफ फ्री राइडिंग, ये भी हमने डिस्कस करा है। बहुत ही रिसेंट एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? वेरी क्लासिक एग्जांपल इज टिकटलेस ट्रैवलिंग। करा है किसी ने बिना टिकट के ट्रैवल?
सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री राइडर, क्योंकि बाकी के जो जितने लोग हैं वो पैसे दे के जा रहे हैं, बट जो ऐसे हैं वो उन्होंने फ्री में करा है, तो कुछ लोगों ने दे हैव जस्ट यू मेड यूज ऑफ इट. If I can benefit from national defense, whether I pay the taxes or not, then why should I let others pay for it? But if everyone thinks, then nobody pays for it and there is no good. So this creates a classical collective action problem, or heavily in India, you will see in many states. And market which relies on non-payers will completely, वहां पे कोई market बनेगा ही नहीं, that will completely break down. So where do health and education fit? Health and education are mostly not, we've discussed, are not mostly a public good in technical sense. So why do you have private hospitals? Yes. So they can, अगर आपके पास वो certain amount of money नहीं है, then they can actually exclude you. But can it happen in government hospitals? Maybe not. So it is actually a mix. So, but some healthcare interventions are genuinely public. Okay. So, for example, when smallpox was eradicated, everyone benefited. No one was excluded from a smallpox free world, from a polio free country. So, my benefit was not reduced by your benefit. So now, अब जब हम वेक्टर कंट्रोल की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि था कि ड्रेनिंग मॉस्किटोज, ब्रीडिंग ग्राउंड्स दैट प्रोटेक्टेड द इंटायर कम्युनिटी. किसी के गेन से किसी का लॉस नहीं हुआ. सेम विथ हेल्थ information campaigns, knowledge about hygiene, about nutrition. This is just benefiting everyone in the society. So education is similarly a mix. Education itself has public good characteristics. So if my learning of calculus doesn't prevent you from learning, but teaching service is private. Okay, a seat, एक classroom में एक seat है जिसको occupy कर लिया तो that cannot be simultaneously shared. 40 शीट है, अब सीट है आपके पास में तो आप उतने बच्चों को ही कर सकते. बट जो एजुकेशन की बेनिफिट है दैट multiplies beyond student and society in larger. This was all about your public goods. Now we will talk about externalities. Externality occurs. Definition सबको याद होना चाहिए. Externalities occurs when one transaction between two party imposes costs or benefits on a third party that was not involved in the transaction and has no say in the matter. Positive externalities in healthcare is key. When you get vaccinated against measles, you don't just protect yourself, you protect infants too young to be vaccinated. You prevent your entire society. This is which is we known as herd immunity. बहुत ज्यादा बात हुई थी इस पे during the COVID. So herd immunity is a textbook example of positive externalities. Okay. So social benefit of vaccine is exceeding your private benefit. Okay. So इसमें मार्केट के कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं. पीपल गेट वैक्सीनेटेड देन दे आर लेस सोशल ऑप्टिमल बिकॉज क्या हो रहा है कि दैट इज अ कॉस्ट ऑफ देयर पर्सनल बेनिफिट. सो दिस जस्टिफाइज योर सब्सिडीज. इसमें भी मार्केट एज सच स्टैंड नहीं कर पाएगा. बट हम क्या करते हैं कि हमेशा हम प्राइवेट गुड को पब्लिक की जगह पे प्रायोरिटाइज करते हैं. ओके. If we talk about positive externalities in education, an educated person will generate benefit for everyone around them. Positivity spill over करती है. Educated
जो मतलब जो पर्सन होते हैं ना, जो दे विल बी व्हाट, मोर स्किल्ड, मोर प्रोडक्टिव कोवर्कर्स। डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग होती है, बिकॉज एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन, जिसको समझो जो इलिटरेट, जिसको पता ही नहीं है इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, हमारी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बारे में, वोटिंग राइट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, तो क्या होगा, डिसीजन मेकिंग क्रिपल हो जाती है। सो इन्फॉर्म्ड डिसीजन just make better collective decisions. It reduces crime, directly linked to unemployment, we've discussed in detail, and education corrects strongly with, it is strongly connected with lower crime rates, and innovation diffusion. Educated population adopts to new technology faster. We have studied something which is known as a digital device divide, ki access to accessibility to internet and the digital technology जब वो हो जाती है ना, is when not there, then it creates something which is known as a digital divide. So negative externality भी मैटर करती है, पॉजिटिव मैटर कर रही है तो नेगेटिव भी करेगी. So antibiotic overuse can create resident bacteria that harms everybody. अगर एक strain of bacteria gets resistant, तो it kind of harms everybody. सो अनवैक्सीनेटेड इंडिविजुअल है वो, जहां कहीं भी जाएगा, चार लोग हो सकते हैं इन्फेक्ट हो. इस पे वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन ऑल्सो. इफ समबडी हु इज इन्फेक्टेड और उसके सिम्टम्स है, ओके, उसके सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे, मे बी ही इन्फेक्ट अदर पर्सन जिसको पहले से बहुत डायबिटीज और ये सारी इश्यूज थे, इट माइट बिकम लाइफ थ्रेटनिंग फॉर देम. तो उसमें क्या हो रहा है, द पर्सन बिकम्स अ कैरियर ऑफ द डिजीज. मेरिट गुड्स की बात करते हैं, ठीक है. सो मेरिट गुड इज एक्चुअली a normative. We have studied merit goods are something concept that is where society believes that it should be consumed, whether people choose or not. It is good for which the society believes that it should be consumed despite your willingness or ability to pay for it. So this logic goes beyond externalities. People may underestimate future benefits. ठीक है, बचपन में हमारा भी पढ़ने का मन नहीं करता है कि नहीं इतने एग्जाम से ये है वो है, बट whatever we are today, we have built upon the education we received as kids, है ना. So this is, people may discount the future to heavy immediate gratification. अभी we see how it is the world of immediate gratification. ये क्या करता है, आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है. बट स्टिल, what do? We very often go for instant gratification, but when we, क्या होता है कि, but it's like it may discount some of the future की है, okay. Informational asymmetry क्या होता है, when parties don't have same treatments that they need. मतलब सेम इंफॉर्मेशन उनके पास में नहीं है, सेम स्टेटमेंट नहीं है. जैसे एक पार्टी के पास ओवर इंफॉर्मेशन और एक के पास कम है, ओके. सो इसमें और आ जाता है आपका एडिक्शन और कंपल्शन का, जो आपका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स है. तो दिस इज व्हाट, क्या हो जाता है कि हेल्थ केयर, जब हम एक मेरिट गुड की बात करेंगे, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ केयर एज अ मेरिट गुड, तो प्रिवेंटिव केयर is systematically under consumed. People don't get regular checkups, they skip vaccines, ignore symptoms till it is too late. So emergency care decision happens when people cannot make rational choices. Health literacy is low when people undervalue treatment options. बहुत बार आपने देखा होगा कि वो झेल रहे, पता चल रहा है कि ट्रीटमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, पर उस पे उस तरह का फोकस नहीं है, उस तरह का ये नहीं है. When we talk about education as a merit good, children cannot meaningfully consent or refuse education. उसको पता नहीं है, but education we know कि long term में is extremely important. So short-term cost of sitting in a class, doing your homework, giving your exams has vivid long-term benefits. Okay. So इसमें हमने देखा था कि there are certain households जहाँ पे education cannot be prioritized because they are
more focused if the person is standing in 7 hours in the market, the sales and the money that is brought to the table is way more. And अभी होता है कि अगर food की requirement है, hunger है, तो that makes more sense than instead of sending a school. So we had something which was known as the midday meal scheme. Okay. Two, abhi to we have Poshan Yojana as well. So this is what, these are all your incentives. Why so? Because it's a merit good. The society expects you to consume it. Clear hai? Okay. So we had discussed all these four topics. So now we will move ahead. Okay. Let's discuss about a little bit of more about the challenges and developments between, between the developed countries and the development countries. ठीक है, इसमें अगर इंफॉर्मेशनल असिमेट्री है तो ये डेवलप्ड कंट्री में समवॉट मिटिगेट हो गई है थ्रू एजुकेशन एंड इंटरनेट का एक्सेस। अगर आपको कोई बता रहे कि ये वाली दवाई खानी है तो आप भी गूगल करके देख लेते हो, आप कोई ऐसा सजेशन ले लेते हो, ऑनलाइन रिव्यूज देख लेते हो, साइड इफेक्ट्स आप खुद भी पढ़ सकते हो। बट इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी जहाँ पे लिटरेसी कम है, कनेक्टिविटी पुअर है, डिजिटल डिवाइस है, एक्सेस टू इंटरनेट नहीं है, तो क्या होगा, these simple things become very difficult. And then when we talk about ability to pay, higher income, insurance coverage, what is this? That is a developed economy mein. So now out of developing में again you'll see out of pocket spending की किसी को कुछ हो गया, and then entire family suffers, the entire family kind of breaks down under the financial load. तो उसको बोलते हैं ना कि वो बहुत बहुत इसमें क्या हो जाता है, at many times it is the emergencies out of pocket expenditure. If there is a, suppose there is a strong nationwide insurance scheme, और बहुत लोगों का ये होगा, बहुत ज्यादा it will be protected. Strong regulatory infrastructure, developed country में again when we talk about government capacity, developing में corruption, infrastructure when we talk about hospital, roads, electricity, but developing में we're doing it, somewhere getting there but not there yet. And again the trained human capital from for delivery, trained abundant professionals, and in developing countries see a severe shortage. So developing country cannot simply cope developed country models. The context requires different approaches, and that is what we explore. That is what how we go ahead with our education and health sector and strategic innovation with it. So, when I was making this lecture, this was like this unit, when you talk about the current scenario of India's reality check and health and education, this is one of a very heavy chapters that we will be doing together. Before that, प्लीज सी यूनिट 1 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बताइए, जो हमने अलग पर्सपेक्टिव से भी बात करी है वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, जो नॉर्मल हमने पढ़ा है वो चीजें आपको समझ में आ रही है। ओके, पहले भी, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन, प्लीज रीच आउट टू मी। ओके, कोई डाउट नहीं है। ओके, सो नाउ वी विल मूव टू आवर सेकेंड यूनिट। ये बनाते हुए मुझे भी लग रहा था, बिकॉज दिस काइंड ऑफ गिव्स यू अ रियलिटी चेक। शॉक थेरेपी पता है? शॉक थेरेपी इज बेसिकली जब करंट सिनेरियो से ऐसे रूबरी कराया जाता है, नॉट वो इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी नहीं, दिस आल्सो। सो इसमें हियर वी ट्राई टू डू अ रियलिटी चेक।
okay, on our current scenario. How, देखो, opinions differ कर सकते हैं. You can differ कि no ma'am we are doing amazing. Are we? Yes we are. 60 सालों में इंडिपेंडेंस को पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप देखोगे कंट्री कंपैरिजन में, इंडिया से we are doing great. Some context देखोगे we're not. We are like there are in many areas infant mortality rate is still high. छोटे बच्चे like that's a very disturbing thing कि छोटे बच्चे जो born हो रहे हैं वो 10 in 5 है then they are dying. तो वो छोटी छोटी चीज, और ये क्या हो रहा है, मेल न्यूट्रिशन की कमी से हो रहा है. तो देर आर सच थिंग्स, तो हम उन चीजों की बात करो दैट इज स्टिल देयर इन रिमोट एरियाज. तो these things could be subjective when you talk about, when you have discussion. Then we have something which is not subjective, that is your data, that is your number. वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो तो इतना ही है. आपका ओपिनियन और हो सकता है, मेरा ओपिनियन और हो सकता है. तो जब हम ये रियलिटी चेक लेंगे, we do it from the point of view of the data, from the point of view of the numbers, because numbers will not lie. We have also discussed something in the class, that is that what cannot be measured cannot be managed. जब आप उसको मेजर कर सकते हो, आप तभी उसको मैनेज कर सकते हो. मैनेजमेंट की वन ऑफ द कोट्स लाइंस है जो हमने क्लास में भी डिस्कस करी है. सो वी विल डू इट थ्रू द लेंस ऑफ डेटा. स्पेंडिंग कितनी है, हम सबसे पहले बात करेंगे हेल्थ केयर की. इंडियाज हेल्थ केयर में 3.0% ऑफ द जीडीपी is spent on healthcare. This is not only for the public hospital, this is combined public, private, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, आपकी आशा वर्कर होगी, दवाइयाँ, ऑल ऑफ इट. ठीक है, ऑल ऑफ इट कम्स इनटू 3.0% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ केयर. पब्लिक एक्सपैंडिंग कितना होता है, पब्लिक एक्सपैंड है वो 1.3 ऑफ द जीडीपी, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. हम कर पा रहे हैं. ऑल्सो one more thing, there is a recommended, like every year there's some recommended terms by WHO. We are actually उससे कम भी हम expand कर रहे हैं. Okay, कंपेयर कर लो, डेवलप्ड से करो. यूके में 10%, जर्मनी 12%, इवन टॉक अबाउट थाईलैंड, बांग्लादेश 4 से ऑलमोस्ट आपको ऊपर देखने मिलेगा ऑन एन एवरेज. आउट ऑफ पॉकेट बर्डन की बात करते हैं, 50 से 55% हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो इंडिया में होता है वो कम्स फ्रॉम पेशेंट्स पॉकेट एट द पॉइंट ऑफ केयर. जरूरत है, द पर्सन इज डाइंग, द बहुत रिक्वायरमेंट है, द पर्सन पेज द मनी, which is one of the highest in the world. इससे क्या होता है कि if the household is also dragged into poverty, that is why insurance are extremely important. इसमें क्या हो रहा है कि suddenly something happened and then the entire family is drawn down into medical expenses, maybe loans, because at that point of time the person is not the priority changes. कितने भी पैसे लगे वो करो. Very normal human response. So अभी a lot of us are having flus, stomach issues, because अभी थोड़ा सा weather change हो रहा है, class में भी हो रहा है, बाहर भी people are saying. And if you, I had something important and there's like I was feeling कि okay ठीक है, I have to teach but my throat is hurting. Immediately दवाई में मैंने देखा 800 की दवाई मंगा ली, जरूरत भी नहीं था. Because जब आप देख रहे हो कि आप बीमार पड़ रहे हो और ये दवाइयाँ आ जाएंगी तो क्या होता है कि you feel कि यू सेफ हो जाओ. उस टाइम पे यू डोंट सी कि मेरा आगे का बजट कैसा चलेगा. एंड सेम गोज, एंड दैट इज एक्चुअली multiplied multiple times when there is a loved one who is in distress and pain. You don't see कि अब अगले महीने का वो कैसे होगा. You just मेडिकल एक्सपेंस वो क्या हो रहा है मोस्टली इंडिया में, वो आउट ऑफ पॉकेट जा रहा है. ओके, देन हम इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप बात करते हैं कि पर 1000 पॉपुलेशन में कितने डॉक्टर होने चाहिए. तो WHO के कुछ सजेशंस है, कुछ नॉर्म्स है. सबको पता है दैट डॉक्टर्स आर लेस देन वी रिक्वायर पर 1000 पॉपुलेशन में 8.6 डॉक्टर है. WHO 10 से ज्यादा सजेस्ट करता है. नर्सेस 17 है, WHO 25 से ज्यादा सजेस्ट करता है. And the worst part that even was very much highlighted during the COVID hospital beds. It's a struggle if
anyone has to be to government hospital. 5 बेड, WHO 10,000 लोग में 5 बेड। WHO क्या रिकमेंड करता है? 30+। And there was this reel that went viral, and there's a girl who is saying ki uh, India mein, if being poor is the biggest crime. See, we are in a government hospital and then we have to carry oxygen ourselves. टोकन लेना पड़ा, इमरजेंसी में जाना पड़ा, स्ट्रेचर भी खुद लाना पड़ा, while our person is there, you are crying, nothing matters, there are 7 other families crying with you, इतने लोग लाइन में लगे हैं, आपको सब कुछ करना है, and even the person dies, then you have to return the stretcher, that is the priority, get the token number. There's no place for emotion, so we should get rich. And if you look at from the perspective of everybody is commenting ki, yes, it is nice, yeah, from individual perspective, yes, earn more money, get more educated, but it is more of an infrastructural problem. In class, we've discussed thinking from not only a lens of a consumer. Since you are doing masters in business administration, you need to think from a strategic manager point of view. Then you see कि okay ठीक है, when that girl becomes rich and does good, or like the person who's watching does, the people who commented does, still there will be some people जो afford नहीं कर पाएंगे. Solution there is not only earning money. That's a very individual बहुत ही ये solution है. It is a policy failure. It is a systematic problem. It is an economic failure. And काम उस पे होना चाहिए. So this just gives the entire comes back to the core, the basic healthcare. That girls become rich. Everyone who commented, okay, I do amazing for my family because हमारे हाथ में वो है तो हम उस पे फोकस कर रहे हैं. पर इन जनरल सी इफ यहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड अगर 30 चाहिए, 30+ WHO रिकमेंड कर रहा, एंड we as a country are able to do it, then that is a long time sustainable efficient solution. And as a manager, as a educated person, as an expert, that is the point of view. If you have like an individualistic point of view, okay, you might do amazing in your life and that is good, but we are still there as a society. We are still suffering as a society. वो तो वही है, आप नहीं होगे, कोई और सेम स्ट्रगल में सेम लाइन में होगा. So the solution here is not individual wealth. The solution here is strong economic background. It is strong economic investment. GDP का more percentage should be invested in health. We should have more number of doctors. कि आप सोचो अगर 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग, और किसी को भी ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, कोई भी बहुत बीमार पड़ता है, तो 5 बेड्स अवेलेबल होंगे इन 10,000 लोगों में. We have like 5 hospital beds per इसमें. You can imagine, and we all are data number here. अगर आपकी लोकेलिटी में आप देख लो, 10,000 लोग हैं, इमरजेंसी होते तो वो 5 होते, तो there always will be struggle उसके लिए. But if we increase that number, जब बेस पे काम हो रहा है, पूरे हेल्थ केयर सेक्टर पे काम हो रहा है, विच इज द सोल्यूशन, एक्चुअल सोल्यूशन टू इट, जब पॉलिसी लेवल पे काम हो रहा है. व्हेन डॉक्टर नारायणा सॉल्व्ड द इशू ऑफ लाइक व्हेन ही केम अप विद द नारायणा मॉडल, जब वो हॉस्पिटल आया, it was not how many thousands and thousands of people have been benefited. People with kids with hole in the heart system, jinka free में treatment हुआ, because he came up with a innovative social module, not individual wealth only. So you have to think from that point of view जब आप इन problems और इसकी बात कर रहे हो कि ओके, पर्सनल गोल्स आर अमेजिंग, रिस्पेक्टेड, बट अगर आपने वो पर्सनल गोल अचीव भी कर लिया, देन यू शुड सी कि व्हाट इज द ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट इन द सोसाइटी. आपके वहां पे जाने से क्या फर्क हो रहा है. दैट इज व्हाई व्हेन वी टॉक अबाउट स्टार्टअप, दैट इफ you made a successful idea that can generate money, solve problems, and you are employing 50 other people, then what you are doing, then you are contributing to the growth of your country. That is what is important. Okay. So when we talk about the healthcare, this is the infrastructural gap we have. And as young people, I think you should take a screenshot of it and see how much in your life can you contribute to this, because this is not an individual problem. This is our social problem. This is where we stand
in healthcare. And ऐसा नहीं है कि ये the people who are studying for UPSC उनका ही काम है. All of us are here there. इस जगह पे हम सब एक बराबर है. कुछ ज्यादा ये नहीं हो रहा है. ठीक है. Distribution problem. 80% of doctors, again, ये तो आपने numbers देखा कि we have under equipped. यहाँ पे हम बात करते हैं skilled population की, यहाँ पे हम बात करते हैं skilled surgeons की, talented people की. एक तो हमने अभी numbers की बात करी है, ठीक है. These are straight numbers, no gimmick, no ये, no opinions, just numbers. And we see you so that you have a better idea of where we stand and how strategic innovations we should do so that we can solve these issues. Then we have distribution problem. ये तो number already कम है, ठीक है. उसमें 80% doctors are practicing in urban areas, serving 35% of the population. एक तो कम है, और जो है वो भी concentrated है in one area. जहाँ पे जो urban population है 35% उसको serve कर रहा है. 75% people still very less access to education. There are things when you travel, when you are like born, and most of you are from Delhi, born and brought up here. When you go to the remote parts, when you tell about the stories, you would be like shocked. There is like a Bodh place in Odisha. My friend was posted there, declaring civil services, and then she was not well one day. So लेके जाना था. वो वहां पे IPS ऑफिसर है. ऐसा नहीं है कि ये सो इंडिविजुअल सक्सेस पूरा सब कुछ शी हैज गेन. IPS ऑफिसर. एंड वन डे शी इज नॉट इल, तो जाना है. तो 10 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके, वहां से 10 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, एक क्लिनिक है. 50 किलोमीटर दूर जब दे वेंट, 120 किलोमीटर दूर वन हॉस्पिटल टाइप का स्ट्रक्चर, वहां पे दे वेंट. वो नर्सिंग होम था. इवन दैट वाज नॉट अ प्रॉपर हॉस्पिटल. हॉस्पिटल आपको कहा है भुवनेश्वर, 200 किलोमीटर जाओ ट्रैवल करने के लिए फॉर बेसिक हेल्थ केयर. This is the healthcare distribution problem that we are talking about. So when we talk about states like Kerala, they have different healthcare indicators compared to upper middle class, upper middle income countries. So अब इसमें क्या हो रहा है? States like Bihar, UP, MP, they have indicators comparable to many other African countries. So अब ये क्या हो रहा है? Distribution नहीं है. Some states have very good indicators, some states have very low indicators. तो again क्या हो रहा है हमारा? Distribution का हो रहा है. Okay, so अब क्या है ना कि we will talk about some more diseases. ठीक है, थोड़ा सा we will expand further on this. That we face like a double burden of diseases. We are still fighting infectious diseases. Tuberculosis has India has world's highest tuberculosis burden. Malaria, dengue, vector-borne diseases बहुत ज्यादा persist करता है. अभी आप देखोगे there are times जब वो बहुत ही peak पे जाता है, rise होता है. These are preventable. Diarrheal disease, one of the highest causes of child killers. Maternal mortality rate, it is declining, but still there is thing to do. मतलब mortality is basically after giving birth, जो उस टाइम पे maternal जो death होती है उसको बोला जाता है. ये अभी डिक्लाइन कर रहा है बट बहुत है. अब जो नॉन कम्यूनेबल डिजीजेस है आपकी, डायबिटीज second only to China. We have 77 million Indians suffering from diabetes. Cardiovascular disease, heart disease, one of the leading cause of death in India. Cancer is our cancer rates are on a very high. It's like increasing. And also mental health is under diagnosis. जिसकी ऐसी कुछ ज्यादा बात, ज्यादा चर्चा है नहीं. ठीक है. Why this matters, why we have these like transitions, because जो infectious disease है ना, that requires public health infrastructure, surveillance, vaccination, sanitization, MCD, regular checkups. जो आपकी non communicable diseases है उसमें आपको regular checkup, meditation, your simple things to calm you, some mindfulness, and also lifestyle, जो kind of products that we are exposed to,
ये सारी चीजें होती है, एंड इसमें भी काइंड ऑफ द सिस्टम इज स्ट्रगलिंग. When we come from healthcare, then we talk about education. Now, education में इट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री. हमने काफी बारी क्लास में भी डिस्कस करा है, बात करी है. एक क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की डिबेट रहती है कि वी आर नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट. राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2009 में हुई थी. मैंडेट फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 अंडर द एज ऑफ 14. इनरोलमेंट रेट्स बहुत ऊपर गए. स्टैटिस्टिक्स आपके 70 से, और हम सबको पता, हमने डिस्कस करा है कि हमारी लिटरेसी रेट पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत कम थी. बट दीज आर लाइक की numbers in terms of enrollment, not in terms of quantity. यहाँ पे हमारा क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी वाली चीज आ रही है. नाउ हमारा यूनिवर्सल इनरोलमेंट रेट तो नजदीक आ रहा है, बट अगेन हमारी क्वालिटी वाइज यू विल सी वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग. उसके लिए व्हाट आर द नंबर्स? एनुअल स्टेटस ऑफ योर एजुकेशन हेल्थ जो होता है ना, दैट विल रिवील अ लॉट ऑफ गैप्स. 50% ऑफ ग्रेड 5 जो फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं have actual knowledge and information grade 2 level का. बहुत एविडेंट है. इफ यू गो टू गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड इफ यू आस्क स्टूडेंट क्वेश्चन, अगर आप बातें करते हो तो बहुत एविडेंटली आपको पता चल जाएगा. 30% ऑफ क्लास 8 स्टूडेंट्स कैन नॉट डू बेसिक डिविजन. क्लास 8 में आके डिविजन नहीं कर पा रहे हैं. व्हाट इज दिस? आ गए हैं. व्हेन यू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ, so when we are taking कि we are having a lot of schools, we are having enrollments, but still quality एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. ये एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि एज इट इज जस्ट बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू improve the quality. There is quantity, number of ye. I have also discussed a few data with you that number of youths are unemployable. Number of professionals, engineers, MBA graduates are employability उनकी बहुत कम है. नाउ इस लैग का, इस गैप का, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का जो गैप है ना, इसका क्या आउटकम हो रहा है? एक बहुत बड़ा ये है इसका टीचर एब्सेंटिज्म. स्टडीज फाउंड दैट 25% teachers absent होते. कोई in a remote areas, nobody to go and see. Teachers are there, coming or not coming, going not going. उससे क्या हो रहा है? Absenteeism बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे it becomes very difficult to improve the quality. तो पढ़ तो रहे हैं, enroll तो हो गए जैसे तैसे करके, पास भी कर पा रहे हैं, but no quality. Then also there is an issue with the training of the teachers, because how they are being taught वो भी बहुत ही लिमिटेड वे पे है. सो अब वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मेनी स्कूल, ये क्या होता है ना कि दे लैक फंक्शनल वॉशरूम्स. इलेक्ट्रिसिटी बेसिक नहीं है, वाटर की प्रॉब्लम है, जिसमें क्या हो जाता है कि कंप्यूटर उतने नहीं है, लैब्स नहीं है जितने बच्चों को चाहिए, जैसा रिक्वायरमेंट है. और इसमें क्या हो जाता है कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं जो इंडिविजुअल अटेंशन को इम्पॉसिबल बनाते. तो 40:1 का रेशियो होना चाहिए, बट लाइक बहुत स्कूल्स में नहीं हो पाता. सो नाउ करिकुलम एंड असेसमेंट प्रॉब्लम है कि emphasis is ऑन मेमोराइजेशन, कि एक रात पहले पढ़ के दे दिया, क्या गेन हुआ पता चला, क्लासेस आए थे नहीं आए थे, इनका कुछ भी पता नहीं चलता. लैंग्वेज बैरियर की बहुत बड़ी बात हो जाती है कि बच्चों को यूजुअली इंग्लिश या हिंदी में पढ़ाया जा रहा है इनिशियली, एंड नॉट देयर मदर टंग. एंड यू नो कि जो इनिशियली के बच्चे होते हैं वो कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, ज्यादा करके पढ़ते हैं इन देयर मदर टंग. ओके, लर्निंग जो होती है वो आइडियल होती है इन देयर मदर टंग. ओके, ठीक है.
गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक हमने जितने भी डिस्कशंस करे हैं, वी डिड इट फॉर प्राइमरी स्कूल्स, ओके. गोइंग फॉरवर्ड वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर आवर स्कूल्स एंड आवर हायर इंस्टीट्यूशंस एज वेल, ठीक है. तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है. टेक अ स्मॉल ब्रेक, 2 minutes, एंड विल स्टार्ट अगेन एट 8, ठीक है. पानी वानी पी लो, ओके. 2 मिनट, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, रिलैक्स, एंड वी विल स्टार्ट अगेन, ठीक है. ओके, so we'll restart. हमने एजुकेशन सेक्टर डिस्कस कर रहे थे, करंट सिनेरियो ऑफ इंडिया, और हमने बात कर ली है फॉर आवर प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर. हेल्थ केयर की बात कर ली, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रही है, और ये वी आर गिविंग आवरसेल्व्स अ रियलिटी चेक, ओके. नाउ वी टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन सिस्टम, ओके. हायर एजुकेशन में क्या, सो यहाँ पे जो आपका ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो कम है. हमारे पास जो नंबर ऑफ आईआईटीज है, आईआईएम से रिगार्डिंग टू जो हमें पॉपुलेशन चाहिए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, उसके उसमें बहुत कम है. इमेजिन 30 लोग, 30 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, एंड फॉर व्हाट, फॉर हाउ मेनी सीट्स, 30 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर फ्यू सीट्स. 1000 सीट्स भी नहीं, मतलब कैपेसिटी 6000 की है, ऐसे करके. एंड देन वी हैव नंबर्स एज वेल. तो जो हायर, जो हमारा एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा भी है ना, दैट हैज इंक्रीज्ड ओनली इन आवर primary sector, not in government sector. Only in our primary education, sorry, not on higher education. Higher education अभी भी कम ही है as compared to our secondary, okay. There are also एक होता है ना कि फेक कॉलेजेस की वो हो गई है, which is like, जहाँ पे क्या हो रहा है कि
डिग्रीज आपको मिल जा रही है, बट द लेवल ऑफ एजुकेशन दैट इज नीड टू एक्चुअली बिकम अ स्किल्ड इंडिविजुअल वो बहुत यू विल सी कि कम है। इसको बोलते हैं द एम्प्लॉयबिलिटी क्राइसिस, जिसमें बहुत बड़ी बात होती है ना कि अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स क्या हुआ कि एकाएक से बहुत ज्यादा डिमांड राइज की पर इंजीनियर्स, लोग इंजीनियरिंग करने लगे एंड इट वाज सीन एज अ गुड एस्पिरेशनल जॉब। तो एस्पिरेशनल डिग्री, तो इसमें क्या हुआ कि लॉट ऑफ कॉलेजेस क्रॉप्ड अप ऑलवेयर। बट इसमें क्या था कि जो अब वहां से जो पढ़ के निकले हुए बच्चे दर इंजीनियर्स वैलिड ये करके, बट जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी है, द क्वालिटी ऑफ नॉलेज जो इस तरह की दैट इज वेरी मच क्वेश्चनेबल, नॉट अप टू द पार। ओके, इस पे हमारे नारायण मूर्ति सर के बहुत रिमार्क्स वगैरह आते रहते हैं। बिरलास ने भी इस बारे में बोला है कि व्हेन दे गो टू द मार्केट, व्हेन दे सी ये सारी चीजें, तो इसी की ग्रेजुएट्स हैं बट बेसिक जो नॉलेज इंफॉर्मेशन है वो मिस करते हैं। लाइक वन बिल्डिंग, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस हो गए, दिस जस्ट वन बिल्डिंग, लैब्स नहीं है प्रॉपर, जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो नहीं है, जो सिलेबस है वो बहुत आउटडेटेड है, प्रॉपर कमिंग टू द क्लासेस वाली चीज नहीं है। सो ये होता है ना, हेवीली हेवीली रिस्ट्रिक्टेड है ये। सो अब क्या हो रहा है कि ये सारी आपको वो नहीं, आपके क्वालिटी में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। अब इसमें देयर इज अनदर एस्पेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, विच इज नोन एज पब्लिक वर्सेस प्राइवेट। सो ये सिंपल नहीं है, इसमें ना बोथ हैव देयर ओन अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जब हम पब्लिक उसकी बात करते हैं, ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक, सो सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है, इक्विटी। सो प्राइवेट मार्केट अब क्या करता है कि दैट विल do it through your rationalize it through your ability to pay. If healthcare and education are fundamental rights, if they are merit goods, तो access shouldn't depend on the income. कौन चाहिए, पब्लिक प्रोविजन है एंड यू शुड हैव यूनिवर्सल एक्सेस। डिनाई नहीं कर सकते कि बीमार आदमी को आप दवाई और हेल्थ केयर डिनाई कर रहे हो, लाइक that is the case for the public. When you talk about the market correction, market failure correction, given all market failures that we have discussed, externalities में, material goods में जो government intervention होता है, उसमें क्या होता है कि theoretically आपको government intervention ही करना पड़ता है। Second is your risking pool. Government has pool risk across the entire population, and ये क्या करेगा, that avoids your sparse selection. And इसमें private आप क्या हो सकता है, कुछ प्राइवेट इंश्योरेंस मार्केट थोड़ा सा कट होगा, बट स्टिल जब आप पब्लिक सेक्टर से वो काम करोगे तो ऑल्सो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल करेगा। आप जिसमें होता है ना कि यार, इसमें हमने एनएचएस के बारे में पढ़ा था कि आप थ्रू स्केल ट्रेनिंग, स्केल प्रोक्योरमेंट आप एक बार में बहुत ज्यादा कर सकते हो, बट फॉर अ प्राइवेट एंटिटी ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। क्या होगा कि ये मोर फ्रेगमेंटेड अप्रोच होगा। नाउ अब हमने देख लिया कि पब्लिक सेक्टर्स की ये बेनिफिट्स है, पर हम कर क्यों नहीं रहे, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज हियर एज वेल। सबसे पहला जो आपका आएगा दैट इज ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो, इनोवेशन स्टिफ होता है, वो उसमें बहुत रिजिड रूल्स है और वो उसी एक उस सर्कल में चलता है। आप बोलते हैं ना कि if you go to a certain ये कि अगर if you want to, if you know we want to recruit some people in my company, we'll just post an ad, people will apply, will call few people and we'll take them person। हफ्ता 10 दिन की बात हो जाती है, बट इफ अ गवर्नमेंट एजेंसी चाहिए तो वो पूरा रिक्रूटमेंट कलेक्ट करते, फिर वो एक बारी फॉर्म निकालते, फिर पूरे देश के लोग फॉर्म भरते हैं, स्टील अथॉरिटी हो गया, आप कोल इंडिया की बात कर लो, बिकॉज इतने लोग इतने टाइम से उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां बेचारे एस्पिरेशनल। तो अब वो पूरा जो मेथड है ना, वो जो पूरा वो वैसा ही बना हुआ है। इट्स लाइक इजिली 6 मंथ लगेगा टू हायर वहां पे। सो ऑब्वियसली वो क्या हो जाता है कि वो प्रोसेस बहुत ही रिजिड रूल से स्टाइफल्ड है, और ये जरूरी नहीं कि वो नेसेसरी उनका। अब देखो चीजें आ गई दैट यू कैन हायर पीपल थोड़ा सा क्विकली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आप थोड़ी सी चीजें कर सकते हो, यू कैन हायर इंटर्न्स। अभी ग्रेजुअली सी के काफी फ्लेक्सिबिलिटीज आई है, एंड देयर इज ऑल्सो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज एक फिक्स्ड इनकम और एक अचीवेबल जो होता है ना, दैट इज यूजुअली अचीव्ड। तो अब आई शुड पुश माई सेल्फ फॉर द प्रमोशन, आई शुड
डू बेटर, नहीं तो मुझे निकाल देंगे, दीज फियर्स आर नॉट देयर. वी ऑल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ प्लेसेस यू गो की लंच ब्रेक ही चल रहा है, बिकॉज दे विल बी गेटिंग देयर पे स्ट्रक्चर. वो बहुत ज्यादा कस्टमर एक्सपीरियंस से आप मैटर नहीं कर रहा, उसका कुछ ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. देन अगेन यू सी डाइवर्सिटी की बात होती है. व्हेन यू टॉक अबाउट अंडर फंडिंग ना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक तो आपको होता है पॉलिटिकल कैप्चर की बात होती है ना, कि कुछ जो अच्छे रिसोर्सेज है, अच्छे ग्रुप्स हैं, वो उन बेसिस पे हो रहा है, उनके ये कर रहे हैं, ठीक है. देन अगर आप अंडर फंडिंग की बात करती हो, तो वो होता है ना कि हम लोग compete कर रहे हैं एंड हम उधर ही फंडिंग एक्सेस करते हैं जो बहुत अर्जेंट है. हम, क्योंकि उसमें ही हमारे फंड्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हमें फिर जो लॉन्ग टर्म बिल्डिंग शॉर्ट, उसमें शॉर्ट कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि वी आर अंडर स्टाफ्ड, पुअरली इक्विप्ड. जो फंडिंग्स हो रही है गवर्नमेंट उसकी, वो बहुत ही कम. अगर आप जाके देखोगे ना सर्टेन ईयर्स, तो यू विल सी कि बहुत ज्यादा देयर इज लाइक इनिशियल पार्ट में भी बहुत ज्यादा ऐसा रिक्वायरमेंट होता है फॉर इसका. एब्सेंटिज्म की बात कर लो, अभी हमने करा है कि शॉप रेट बहुत कम होता है. देयर आर घोस्ट वर्कर्स ऑन द पेरोल. अगर आपने मनरेगा का स्कैम देखा होगा, प्रिक्योरमेंट स्कैंडल्स होते हैं, ब्राइवरी, किसी से भी मिलने के लिए पैसे दो. करप्शन इज लाइक समथिंग, बोलते हैं ना, जो देश को खोखला कर रहा है. वी ऑल नो, मतलब आई यू विल हार्डली मीट समबडी जो जिसको ये बात पता नहीं है. करप्शन इज लाइक a normalized reality that is there and it is affecting all of us. One of the leading reasons तक ये करने के लिए कि there's like a famous example कि अगर दिल्ली से 1 रुपया आता है, तो एक पिछड़े हुए स्टेट के गांव तक जाने तक ना वो 20 पैसे भी नहीं बचते हैं. इफ यू रिलीज फंड ऑफ लाइक 1 रुपी की यहाँ पे जाके किसी के उसमें जाना है. बट ये करा, बट अभी क्या है ना कि करप्शन को बाईपास करने के लिए देयर मेनी थिंग्स लाइक, अगर आपने देखा होगा जन धन योजना थी, तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो रहा है कि डायरेक्ट उसके बैंक में दे दे, तो किसी के थ्रू किसी के वो करने का वो नहीं हुआ. सो थ्रू टेक्नोलॉजी क्या होता है कि करप्शन को ये किया जाता है ना, ऑल्सो थ्रू अवेयरनेस. प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट प्रोविजंस की अगर हम केस करें तो डिस्कस करें, तो इफिशियंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंसेंटिव है. बिकॉज ये क्या होता है, ओवरऑल क्वालिटी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ा देता है. गो टू अ प्राइवेट प्लेस, द वे यू विल बी ट्रीटेड, ये होता है बिकॉज दोस पीपल हैव, they might have targets to achieve, so you will be made to feel important. अगर अभी आप एड्स भी देख रहे होगे कोटक महिंद्रा के, they are playing around the same thing and we understand you, we will do things for you, ऐसे करके कि हमारा कस्टमर सर्विस जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा होगा. एक कंज्यूमर चॉइस होती है, तो एक जो व्हाट यू वांट व्हाट यू वांट टू चूज प्रोवाइड, वो आप अपनी प्रेफरेंस मार्केट में रखते हो, मार्केट उसको फुलफिल करता है जो आप चाहते हो, जैसे ये करते हैं. बट रिवील इस इट इससे एक और चीज हो रहा है कि आपके रिसोर्सेज की एलोकेशन बढ़ रहा है, जहाँ पे होता है ना कि आप वहां पे रिसोर्स एलोकेट कर पा रहे हो, जहाँ पे जो चीजें चाहिए उनको, जहाँ पे चॉइस ज्यादा है. देयर इज समथिंग व्हिच इज नोन एज रिसोर्स मोबिलाइजेशन. प्राइवेट में अगेन इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, सप्लीमेंट्स होता है ना, वो लिमिटेड पब्लिक फंड से ज्यादा होता है. अगर आप देखोगे ना, दे कैन ब्रिंग इन more capital, they can bring in more expertise. Also management flexible hota hai, the one that we have just discussed. Hire, fire, pay, organize, constraint, उतना हम requirement के according function कर सकते हैं. Okay. Now problem क्या आ रहा है प्राइवेट के साथ में? Cream skimming. Cream skimming is basically जो the private providers, they serve the profitable share segments, people they can earn profit from. They can have their wealthy, the paying customers तक पहुंचने की वो सारी पूरी होड़ होती है, entire marketing इसकी, leaving the public system at there as well, leaving the population. ये तो इसमें क्या हो रहा है कि आपकी ये justify हो रही है. क्वालिटी वेरिएबल होते हैं कि विदाउट स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन, क्वालिटी रेंज फ्रॉम एक्सलेंट टू चेंजेस वो हो सकता है. कुड बी मिस्टेक्स, दे कुड बी could be things that are not actually harmful to us. The amount of sugar की अगर आप बात कर लो, there are things जो हो सकते हैं कि are actually not good for us and through marketing we have been convinced. तो
these problems like because ethical concern like quality variability काफी ज्यादा है. Excess inequality again, excess inequality होता है कि ये पुअर को एक्सक्लूड कर देती है इवन विथ मेनी अदर थिंग. अगर इंश्योरेंस की भी बात करो, ये की भी बात करो, तो जो एक सर्टेन पॉपुलेशन है दे गेट एक्सक्लूडेड आउट ऑफ दैट. ठीक है. एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज प्रॉफिट ड्रिवन डिस्टॉर्शन. कि अगर आप देखोगे ना तो जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन है दैट इज एक्चुअली प्रॉफिट. तो ओवर सप्लाई ऑफ ल्यूक्रेटिव सर्विस, जो मांग रहे हैं उसको और ज्यादा दिया जाए, अंडर सप्लाई हो जाएगा, जो चाहिए एसेंशियली ये चाहिए जिससे पैसे मिल रहे हैं. एंड ऑल्सो मार्केटिंग क्रिएट्स एन आर्टिफिशियल डिमांड जो शायद उतनी नहीं है. और बहुत सोशल मीडिया मार्केटिंग तो बहुत ही होता है. लुबुबु अभी आपने सुना होगा, कितनी आर्टिफिशियल डिमांड होगी उसकी. कुछ ऐसा सी ना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. मार्केटिंग हैज द पोटेंशियल टू डू इट. जब हमने पब्लिक डिस्कस कर लिया, हमने प्राइवेट भी डिस्कस कर लिया, देन कम टू समथिंग जो है द मिडल पाथ. बीच की जो बात हो रही है कि वी टेक द बेस्ट ऑफ द प्राइवेट, वी टेक द बेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड वी गो ऑन द मिडल पाथ. कि दोनों का बेस्ट ही करते हैं. उसको बोलते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. So PPP attempts to combine public sector equity and it connects it with private sector efficiency. So it is attempt to combine public sector's equity कि सबको एक्सेस हो रहा है with private sector's efficiency. प्लस इसका to do the best synergy. एक और एक 11. This is actually good. दोनों का ये हो रहा है. ये काम कैसे करता है? ओके, सो इसमें होता है ना कि गवर्नमेंट डिफाइंस आउटकम, प्रोवाइड्स फंडिंग, private partner would come and deliver. We've discussed it in the class in very detail. So each party is doing whatever they are best at. This is now the key structure. Key structure is बहुत सारे different models है जिनके थ्रू हम ये करते हैं. We've discussed it again in class. So we will revise this here with descriptions and examples. Contracting out सबसे पहले होता है. Government pays private provider for और डिलीवरी ऑफ अ स्पेसिफिक सर्विस. एग्जाम्पल क्या हो गया? संजीवनी स्कीम क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स को उन्होंने दे दिया फॉर डिलीवरी के लिए, आप दे दो. कॉन्ट्रैक्ट आपने टेंडर निकाला, अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट पार्टीज को दे दिया, ये करना है, ऐसे से करना है, ये एसओपी बना के दे दिया. उसको जो काम है वो प्राइवेट पार्टनर्स करें. फ्रेंचाइजिंग एक मॉडल दूसरा होता है. franchising, it will provide with brand, it will provide with training, it will provide with supply, it will again क्या करेगा कि प्राइवेट पार्टनर्स विल रन दैट फैसिलिटीज कि वो आप फ्रेंचाइजी में कर पा रहे हैं. ठीक है. नाउ वी हैव बूट मॉडल्स. सो द बिल्ड योर ओन ऑपरेट ट्रांसफर टू इंफ्रास्ट्रक्चर. सो प्राइवेट हॉस्पिटल लेकिन वो गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ है. सो यू बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर टू इंफ्रास्ट्रक्चर. अब वो क्या हो जाएगा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का एक पार्ट हो जाएगा क्योंकि अब प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट लैंड पे बना है. यू आर यूजिंग इट, यू आर अर्निंग, एंड आफ्टर द वर्ड वो क्या हो जाएगा कि आफ्टर अ लिमिटेड पीरियड इट कम्स बैक, गवर्नमेंट का हो गया. सो अगेन ये होता है बूट मॉडल आपका, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर. देन वी हैव वाउचर्स. वाउचर्स आर बेसिकली गवर्नमेंट गिविंग बेनिफिशियरीज परचेसिंग पावर टू चूज प्राइवेट बाउंड्रीज. एजुकेशन ये होता है ना कि वहाँ पे वाउचर्स फॉर प्राइवेट स्कूल फीस हो गया कि आप ये कर रहे हो कि गवर्नमेंट, आप जा रहे हो वहां पे पर गवर्नमेंट आपको कुछ स्कॉलरशिप, कुछ वाउचर प्रोवाइड कर दे रही है. ठीक है. तो बेस्ड ऑन द मेरिट वो क्या हो रहा है कि आपके उस आप पार्टी के लेवल का वो कर पा रहे हो. मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके प्राइवेट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज. डायरेक्ट हॉस्पिटल जो हो रहा है ना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, अब इसको क्या कर रहा है कि कोई प्राइवेट एंटिटी मैनेज कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि वो एफिशिएंट हो रहा है. ओके,
सो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको बोलते हैं आयुष्मान भारत. ओके, all of us have heard about Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. It was launched in 2018. So it is one of the world's largest government funded healthcare insurance program. It covers your 50 crore 500 billion beneficiaries up to 5 lakh per family. Up to 5 lakh per family. ठीक है. एंड तो ऐसा नहीं कि अमाउंट आपका ही है. इम्पैनल्ड हॉस्पिटल बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेनिफिशरीज कैन चूज द देयर प्रोवाइडर एंड गवर्नमेंट रियम्बर्स कर रही है हॉस्पिटल एट अ फिक्स्ड रेट. यहाँ पे the PPP logic is clear. Rather than building thousands of new government hospitals, leverage on the existing private capacity. Competition among enameled your impaneled hospital should, उससे क्या हो जाएगा, that you will have more efficiency. Now we see कि इसका क्या implement हुआ है. ठीक है, 60 crore treatment authorized since launch, 60 plus crore लोगों का इलाज हो चुका. Then it has reduced out of cost burden, जो आपका immediate पैसे लग रहे थे under this प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, which is Ayushman Bharat. And it has reduced the private hospitals in smaller town now have a viable pool of patients. अभी हमने डिस्कस करा ना कि वो ज्यादा बिकॉज उनकी फीस ज्यादा हुआ करती थी, तो वो ज्यादा करके अपर मतलब अर्बन एरिया में ही ऑपरेट कर रहे हैं और अपने पेइंग कस्टमर्स को ही सर्व कर रहे हैं. अब इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट पैसे दे रही है उसके इसमें, तो उनके लिए भी एक वायबल पूल हो गया. देयर स्टिल मेनी चैलेंजेस टू इट. ठीक है, सो द पैकेज रेट इज समटाइम्स वेरी लो, तो उससे क्वालिटी सफर करती है हॉस्पिटल. 5 लाख इज लाइक यू वुड नो कि अगर ट्रीटमेंट पे जाता है बहुत. इट्स नॉट कि अभी तक वी आर नॉट देयर येट, मतलब वी आर क्लियरली बी सीइंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है इन प्रोसेस को क्लेम करने में, जाने में, पर्ची कटवाने में. एंड ऑल्सो देर इज फ्रॉड डिटेक्शन जो ऑलमोस्ट हर हॉस्पिटल के साथ होता है कि ऑलमोस्ट करके ये कर रहे हैं कि रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी उसके अंदर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं. सो रियल ये नहीं हुआ, तो लाइक बेसिकली ट्रिकिंग द सिस्टम होता है ना कि वो मिली भगत से ये कर लिया. सो दीज आर द चैलेंजेस. बट स्टिल जब हम बेनिफिट्स की बात करते हो तो इट इज लाइक अमेजिंग. हमने डेटा नंबर के बारे में बात करी तो इट्स लाइक एक्सट्रीमली होपफुल. अगर हम अचीवमेंट्स की बात करते हैं वो भी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन एजुकेशन. सो टाइप्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं कि प्राइवेट मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स. प्राइवेट मैनेज कर रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को. Government subsidizes the private school serving low income students and giving them some English देखिए. तो सिमिलरली सम कुछ सीट्स कुछ ये दे रहे हैं, वाउचर प्रोग्राम्स की सबको किसी को ऐसा स्पॉन्सर कर दे रहे हैं ऐसा. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट ऑपरेशन. So Delhi's Chunauti and School Development Program was attempted on public-private collaboration and with mixed results. Andhra Pradesh is also PPP schools have led to private operators running with their government funding. So they also showed better learning outcome, but concern about cherry picking students and किसको ले रहे किसको नहीं ले रहे इस पे that still was there. So what are the demerits of public PPP? हमने इसके benefits देखे, हम इसके थोड़े से demerits देखते हैं. Okay, एक होता है कि contracts are hard to write. जो कर रहे हैं ना, healthcare and education outcomes are very complex, multi-dimensional, and you're talking about long term contract that specifically like everything जो उसमें सब कुछ लेके आ पाएगा वो impossibly detailed है, वो आप कभी कर ही नहीं पाओगे. So our specified get gamed. Now information asymmetry shifts to government. The private provider knows more about what actually is happening than government monitor, and this is called principal agent problem. Principal agent problem क्या होता है कि जब private provider knows more about what actually is happening than the government monitor, this is a principal agent problem.
और प्रिंसिपल एजेंट तो उसको पता ही। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सो डिजाइनिंग, bidding, monitoring, enforcing contract is expensive and it also requires a lot of capacity. तो जो realistic problems है ना वो इसमें बहुत ज्यादा है. And there are some मतलब होता है ना political and short term problems as well कि jobs threaten feel करते हैं लोग. बहुत टाइम से बात होती है privatization किसी गवर्नमेंट कंपनी की, तो लोग यूजुअली उसका प्रोटेस्ट करते हैं. So these are all the transaction cost हो गई आपका, ये सारी contracts are hard to write, so these are what also some disadvantages of your PP model. With that we have completed our education वाला पूरा part. Okay, with that we also did our model. Okay, so जो हमारा unit 2 है that we have discussed. If any one of you have any questions, any doubt, please go through the unit. देखो एक बारी कुछ भी अगर आपको डाउट है कुछ भी है प्लीज आस्क. चलो, सो द नेक्स्ट यूनिट, थर्ड यूनिट विच हैज मॉडल्स एंड ऑल, उसको ना हम प्राइवेटली दूसरे क्लास में डिस्कस करते हैं बिकॉज 1 घंटे में हम अरविंद मॉडल करेंगे, 1 घंटे में नारायणा मॉडल करेंगे, विच इज लाइक द हार्ट ऑफ योर यूनिट. एक की पूरी क्रक्स है वो, ठीक है. सो अभी के लिए हम लास्ट यूनिट के कुछ पार्ट्स करने की कोशिश करते हैं. वी हैव हाफ एन आवर and we'll try to do the last wala unit. Okay, we have discussed it in details, we have seen the examples also. हम थोड़ा सा भी उसको वो करते हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है. फोर्थ यूनिट इज लाइक लेसन्स फ्रॉम डिफरेंट वेट, ठीक है. मीनवाइल आप देख लो, अगर पहले वाली यूनिट में कोई भी डाउट से कुछ भी, आप एक बार वो देख लो, ठीक है. फिर हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं. Okay?
Fourth unit is where we discuss about examples from elsewhere. We discuss about different countries. Okay. हमने लास्ट क्लास जब हमारी ऑफलाइन हुई थी ना, तो हमने इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा था कि डिफरेंट कंट्रीज जो एक सिमिलर कॉलोनाइजेशन के बैकग्राउंड से आ रही है, डिफरेंट कंट्रीज दो जो एक सिमिलर हिस्टोरिकल प्रेजेंस है या एक सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, एक सिमिलर इशू से गुजर रही है, उन्होंने कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू देयर प्रोस्पेक्टिव एंड थ्रू देयर पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हुए हैं. हमने साउथ कोरिया का मॉडल डिस्कस करा हुआ है अबाउट आवर जो उनका इंडस्ट्री अलाइन मॉडल था, हमने डिटेल में ये सारी चीजें की हुई है. नाउ वी विल हैव अ क्विक रिवीजन इसके बेसिस पे, ठीक है, जो हमारा एग्जिस्टिंग है उसके बेसिस पे. ठीक है. सो हेल्थ केयर से हम पहले बात करते हैं. हेल्थ केयर में सबसे पहले आता है हमारा थाईलैंड. थाईलैंड में वी हैव अ यूनिवर्सल कवरेज ऑफ बजट. इसमें क्या होता है कि मिडिल इनकम कंट्री है, वी ऑल नो. पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट इंडिया से 3 गुना ज्यादा है एंड इट हैज अचीव्ड यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज. एवरीवन हैज इज वहां पे इंश्योर्ड. इसको बोलते हैं द मॉडल इज 30 बार्ट स्कीम. ऑल अनइंश्योर्ड सिटीजन इसमें कवर हो गए नेचुरली. अब इट इज फ्री एंड इट इज टैक्स फाइनेंस. टैक्सेशन किसमें होता है? देयर इज नो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन. पब्लिक प्रोविजन डोमिनेट करता है एंड देयर इज सम प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टिंग इन्वॉल्व. अब इसमें क्या हो रहा है कि उनकी 100% पॉपुलेशन हेल्थ कवरेज में, व्हिच इज लाइक अ बिग थिंग. आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बिल्कुल ही खत्म हो गई है. इसमें जो कैपिटलाइजेशन अमाउंट होता है ना, वो फिक्स्ड नहीं होता. दैट इज लाइक फिक्स्ड. इट इज प्रोवाइडर को मिला जाता है ये कि कितने नंबर ऑफ आपके पास लोग गए हैं. और ये प्राइमरी आपके हेल्थ केयर के गेट कीपिंग में, मतलब ऐसा होता है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर जाना चाहिए किसी बड़े प्राइवेट उसमें जाने से पहले. यहाँ पे जो मेन रीजन है दैट इज द पॉलिटिकल विल के कारण हुआ कि जो नई गवर्नमेंट है दे सेड कि नहीं, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर. ये तो दे फोकस्ड ऑन इट. इफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा बात हुई, टाइट बजट, फोर्स बजट कंट्रोल्स वगैरह रहे. इससे इंडिया के लिए क्या लेसन है? सबसे पहले तो that universal health coverage is also possible for modest middle income. इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, दैट पेज ऑफ. एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, no matter the problems, the challenges, technical issues, if there is a political commitment, it can happen, it can be done. Then we have the Brazil's community health agent, family health program terms, and it is serving a defined geographical area. 3,000 लोग. Each team, one doctor, nurse, nurse assistant, and community health agents. These community health agents are local residents, but they are trained. They are not clinical people, but they're trained. Monthly home visits are recorded. They monthly visit all the households in that particular area. They track the pregnant women, children, anyone dealing with any chronic disease, and they form a connected family system of health. And there is a follow-up treatment. Imagine the impact of it. Significant reduction of infant mortality, especially in poor region. अगर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि एक डॉक्टर, एक नर्स, एक असिस्टेंट वहां पे आपके कम्युनिटी वर्कर्स आके देख रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेग्नेंट वुमन से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, that was the most important thing. Second is जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे हुआ. पैदा होते जो बच्चे मर जाते उनका नंबर बहुत कम हुआ सिग्निफिकेंटली. इससे क्या होता है कि आपका बेटर डिजीज में कंट्रोल मिला, बेटर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल्स एंड ऑल, कि आप जो आपके प्रिवेंटेबल डिजीजेस है ना उनको
कंट्रोल करने का ये मिला। एंड देन ये क्या होता है कि एक ट्रस्टेड रिलेशनशिप बिटवीन द कम्युनिटी एंड द हेल्थ केयर सिस्टम। एंड इनमें उन्होंने बहुत ही बात करी थी, बहुत ज्यादा इन्होंने इसमें भी बात करी थी, प्रिवेंटेबल डिजीज में। सो नाउ वी हैव, इंडिया के लिए क्या लेसन है, हमारे जो आशा वर्कर्स है, क्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, दे आर लाइक कि आशा दीदी, आशा बहन आपने सुना होगा, तो दे आर लाइक 1 मिलियन डिप्लॉयड। एंड ये भी जो हो रहा है बहुत ही मीनिंगफुल काम होता है ऑन द स्केल हेल्थ केयर मटर्निटी बेनिफिट पे, बट दे आर ओवरबर्डन, अंडर पेड, समटाइम्स दे bypassed। सो अगर उनको स्ट्रेंथन किया जाए, कम्युनिटी बिल्डिंग की जाए, तो हम ब्राजील से सीख सकते हैं कि थ्रू कम्युनिटी बिल्डिंग, family community agents, they have referred their health program, they have improved it so much। रवांडा की बात करें ना, तो यहाँ पे दे हैव रैपिड प्रोग्रेस डिस्पाइट पॉवर्टी। इट्स नॉट अ वेरी रिच कंट्री, वेरी, but it is one of the poorest country in the world, and it was devastated by 1994 का genocide, and now it has improved significant, remarkable health in terms of health। Okay, so they have a community based health insurance program जो mandatory है सबको, it is subsidized for people, पर लेना सबको है, very good। अब इसमें क्या हो रहा है कि 90% ऑफ पॉपुलेशन कवर्ड होगी, इंश्योर होगी उस इंश्योरेंस स्कीम के आ रहे। देन यू हैव परफॉर्मेंस बेस्ड फाइनेंसिंग, हेल्थ केयर वर्कर्स जो पे करते हैं ना, इज पार्टली बेस्ड ऑन रिजल्ट्स, कि कितने आप रिजल्ट्स कर रही है, कर रहे हैं, उसके बेसिस पे उनको पे किया जा रहा है, कितना वो डिलीवरी दे रहे हैं। देन वी हैव, सो उससे क्या हो रहा है कि इफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग ऑफ द रूफ। नाउ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, एक सेंट्रलाइज्ड स्ट्रैटेजी है, एक सेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन है। छोटी कंट्री कंपैरेटिवली तो इट्स लाइक सेंट्रलाइज, एवरी is working their way। Now there is aggressive use of technology। Poor country, African country still, अब देख लेना, जो ड्रोन डिलीवरिंग ब्लड से, वहां पे जो ड्रोन की डिलीवरी हो रही है ना, वो ब्लड डिलीवर कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ एवरीबॉडी। सो विलिंगनेस की बहुत बड़ी बात हो जाती है। इंडिया के लिए क्या लेसन है कि अगर फाइनेंशियल, अगर वो होता है ना कि डेवलप्ड कंट्रीज ही वो रिच्यू कर पाएंगे, तो इसको ये एक सीरियस चैलेंज देता है। कम्युनिटी बेस्ड इंश्योरेंस भी कैसे काम करता है, कि वो कितना गवर्नमेंट को सपोर्ट कर सकता है, इस पे आप देखते हो। टेक्नोलॉजी का यूज हम सीख सकते हैं, एंड हम कि कैसे परफॉर्मेंस को इंसेंटिवाइज करके अकाउंटेबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। देन वी कम टू अनदर अफ्रीकन कंट्री, क्यूबा। द प्राइमरी केयर पावर हाउस इसका है। सो अगेन, not a very, it's an underdeveloped country, life जो, but the life expectancy and infant mortality rate is as par with developed country। इनका मॉडल क्या है, it is heavily, it's heavily investment in private, in their primary care and on prevention। so इसमें क्या हो रहा है कि community based practice है, doctors, nurses live in the neighborhood they serve, वहीं पे। एंड देन ये क्या कर रहे हैं कि लोकल विजिट पे, हेल्थ प्रमोशन पे, अर्ली डिटेक्शन पे, जो भी प्रिवेंट किया जा सकता है विदाउट गोइंग टू हॉस्पिटल, उस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, थ्रू अ कम्युनिटी इसमें कर रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, एंड मोस्ट डॉक्टर्स। एंड सो इसका क्या हो रहा है कि मोर डॉक्टर पर कैपिटा रेशियो, जो अभी हमने देखा इंडिया की भी बहुत कम है, उसको नंबर ऑफ डॉक्टर्स पर कैपिटा को बढ़ाया जा रहा है। काम क्यों करता है, प्रिवेंशन, अर्ली ट्रीटमेंट, cheaper hospitalization। now if you trust, when you see about this, then it is also building trust and relationship among the health workers, as we said that they are living in the same area where they are serving। तो एक community trust और building की भी बात हो जाती है, and it is also very much focused on prevention। जो हम prevent कर सकते हैं, हम उसको already prevent करते हैं, ठीक है। there are mandatory screening। okay, so now इसमें हमने, we talked about healthcare, and now we will talk about education, which is cross country। so in Finland we have the, इसमें तो we had a very comprehensive discussion in the class, kind of debate as well, on Finland's anti-testing model, जो class में थे उनको याद होगा, and all of us had very different opinions।
but we did come to a unified conclusion. Okay. So what Finland does is, हमने already पढ़ा हुआ है, we'll do a quick revision. No standardized test until late secondary years में, मतलब initial primary education में no test वगैरह, short school hours, lot of recess, teacher autonomy, no prescribed lessons, no strict curriculum, all teachers must hold a master's degree. Teaching is prestigious and a very competitive profession, late specialization, and they have strong social support, free meals, healthcare, counseling, all of it. Consistently international school assessment top, they are doing low variable between schools, even bad and decent, high teacher satisfaction and very high retention. What we can learn is that teacher quality matters. Testing बहुत ज्यादा, इफ यू रेपिटेटिव अगर आप एग्जाम मॉडल दे रहे हो तो वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है, फियर मॉन्गरिंग का ये कर लेता है. देन वी हैव इक्विटी की, सबको रिड्यूसिंग द वेरिएशन बिटवीन द स्कूल्स की. एक बहुत ही अमेजिंग स्कूल है जिसमें सबको पढ़ना है, एंड देन देयर आर पब्लिक स्कूल्स. द ऑल स्कूल्स आर गुड, मिड लेवल बेटर, इस तरह के होता है. बहुत चीजें हैं जो नहीं कर सकते, we've seen in class also, because small homogeneous wealthy population है, cultural trust in teachers and institution, and different labor market है, different, completely different social context है नेदरलैंड्स का हमसे. देन हमने साउथ कोरिया की बात करी थी, जिसमें वी हैड इंडस्ट्री अलाइंड एजुकेशन सिस्टम. ये किस पे काम करता है? आपका हाई प्रेशर हाई परफॉर्मेंस. व्हाट इज इन दिस मॉडल? Extreme academic intensity, long school hours plus private tutoring. Then you have high stake testing, जो one university is admission exam हो रहा है, and heavy investment in education, both public and private. Result is कि they are near universal literacy. They also have very good scores, but rapid development हो रहा है in the industry because of an educated workforce. We had a very good discussion on this as well. One of the very important reason on South Korea's now being a developed country. So इसमें, and South Korea comes from a colonial history. It comes from a colonial background, so similar to us, not very. It was colonized by Japan, and still they invested very heavily in their education. I can see that. So इसका cost होता है extremely, इसका some price that they are paying, that is कि बहुत high stress होता है, high suicide rates, extremely high student stress and very high suicide rate. Inequality होता है by प्राइवेट स्पेंडिंग, जो ट्यूशन पे जा सकते हैं नहीं जा पाते हैं, और जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, वो भी बहुत ज्यादा अंडर एम्फसाइज्ड होती है. सबका फोकस होता है कि स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी करके एक सैमसंग जैसी बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब इसमें. ठीक है. इंडिया के लिए क्या लेसन है इसमें से? एजुकेशनल इंटेंसिटी कैन ड्राइव रिजल्ट. देखो रिजल्ट तो आ रहा है, इट इज देयर कि हाउ दे हैव skilled, amazing skilled population है, तो they are getting results. But वही stress, inequality वो बहुत ज्यादा है, and private supplementation वो भी होता है ना कि it also gaps को, जो कोचिंग कल्चर होता है gaps को widen कर देता है, कि जो afford कर पाते, the parallel ये वाली चीज होती है कि जो afford कर पाते हैं उनको मिल जाता है, बाकी को नहीं. ठीक है. और सो अभी अगर हम इसकी इंडस्ट्रियल लाइन मॉडल की बात करें, तो हमने क्लास में डिस्कस करा था इसके बारे में कि देयर आर सर्टेन ये जहां पे इट हैज वर्कड अमेजिंगली, बट देयर सर्टेन ये वेयर इट इज नॉट. ओके. जिसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है. ठीक है. नाउ वी कम टू बांग्लादेश, विच इज द एनजीओ अप्रोच. ठीक है. बांग्लादेश में देयर इज बाक, विच इज ओरिजिनल बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमिटी. ये दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है. 40 स्कूल्स रन करता है ये बांग्लादेश में, और ये फोकस करता है मार्जिनलाइज चिल्ड्रन पे, लड़कियों पे जो रूरल कम्युनिटी से आती है. इनका क्या है कि स्मॉल स्कूल रहेगा, 20-25 स्टूडेंट रहेंगे, लोकल फीमेल टीचर्स रहेगी, तो मिनिमम फॉर्मल क्वालिफिकेशन है, ज्यादा ये नहीं है. इंसेंट, और इसमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, सपोर्ट फॉर एजुकेशन,
फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, उनके जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड डिमांड है कि काम करके शाम को पढ़ने बैठना है, सुबह आ जाना उसके हिसाब से। और जो लोकल फीमेल टीचर है वही उनको पढ़ा रही है वहां पे, और ऐसे 20-25 स्टूडेंट है, जैसे होता नहीं गाँव में एक छोटा सा ऐसे ये करके। और जो करिकुलम है ना वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को अडॉप्ट किया जा रहा है, जैसे लोकली जिसकी रिक्वायरमेंट है, और ये कम्युनिटी के साथ बिल्कुल मिलके हो रहा है। तो इसका क्या रिजल्ट होता है? हाई कंप्लीशन रेट, क्योंकि आप साथ में पढ़ा रहे हो, आप मतलब सारी चीजें को इंटीग्रेट कर रहे हो, फैमिली को भी आप ये कर रहे हो कि जब टाइम हो जाए तब कर रहे हैं, करिकुलम को आप सॉर्ट इन कर रहे हो, तो ये कर रहे हो, ठीक है। सेकंड इज कि और 20-25 लोग हैं जो लोकल फीमेल टीचर्स है वो आके वहां पे पढ़ा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि हाई कंप्लीशन रेट, जो ड्रॉप आउट रेशियो है ना, जो लोग ऐसे छोड़ देते हैं वो बहुत कम हो रहा है। लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ा है, मतलब जो लर्निंग आउटकम्स है कंपेयर टू गोइंग टू होता है वो भी इंक्रीज हुआ है। एंड ये क्या हो रहा है कि इनको फिर सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया जा रहा है इन फॉर्मल सेकेंडरी स्कूल्स में, हो रहा है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जा रहा है। ये काम क्यों करता है वाइट वर्क्स? बिकॉज इट इज फ्लेक्सिबल, इट एड्रेसेस द रियल बैरियर दैट इज टाइम, डिस्टेंस, जेंडर, असली दिक्कत को रेयर कर रहा है और उसके लिए वो एक सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है। एंड जब टीचर आपकी कम्युनिटी से बगल वाली आंटी 25 बच्चों को लेके पढ़ा रही है, सम मतलब मिनिमल फॉर्मल उनके पास एजुकेशन है, ये तो पीपल आर ऑल्सो, इट इज इजी फॉर देम टू ट्रस्ट, ठीक है। और ये स्मॉल स्केल पे हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी रह रही है, वो 20-25 बच्चों की ही बात हो रही है एक इसमें। और एनजीओ मैनेजमेंट है तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा है कि थोड़ा सा कंपेरेटिवली फास्ट तो कर पाते हो। इसमें इंडिया के लिए क्या लेसन है कि जो नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स है, जो एनजीओ है, वो भी कई बार बहुत ही एक्सेप्शनल काम कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करती है, स्पेशली जब आप मार्जिनलाइज ग्रुप्स की बात करो, जेंडर्स की बात करो स्पेसिफिकली, तो वहां पे उनके अकॉर्डिंग कि अच्छा ठीक है आज काम पे नहीं, काम पे जाना है तो पढ़ाने नहीं भेज सकते, अच्छा ठीक है तो आप काम के बाद भेज दो। प्रैक्टिकल रियल सोल्यूशन कुछ उसमें ये नहीं दे रहे हैं, ताकि वो साथ के साथ में एजुकेशन भी हो जाए। एक होता है ना कि बिल्कुल ही इंसान अनएजुकेटेड है वो, सो इट इज लाइक अ मिनिमल गैप। इसमें क्या हो रहा है कि कम्युनिटी ओनरशिप है, ठीक है। Now when we talk about, if we have seen all these different, we will see what works and what does not work, ठीक है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस करे हैं, पहले वाले क्लासेस में भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे, हमने थोड़ा सा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट भी देखा, पर अभी हम देखते हैं कि क्या काम कर सकता है, लाइक व्हाट वर्क्स उसके कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एक कॉमन सक्सेस पैटर्न, इफ यू सी कॉमन सक्सेस पैटर्न दैट यू विल सी इन हेल्थ केयर, दैट इज की focus on primary care foundation. Countries that have focused strongly on the primary care, they are spending very less on others, ऐसे करके also on preventive care, ठीक है। So इसमें we see something which is the कम्युनिटी कनेक्शन। आशा वर्कर्स की जैसे हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करी है, हमने इसकी सेम बात करी है बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि कम्युनिटी वर्कर्स को ये करके लेके आके, तो उसमें ये काफी कामयाब रहा। इट इज लाइक इट हैज बीन मोर फंक्शनल एज कंपेयर टू इट्स बिन देयर। एक अकाउंटेबिलिटी की बात करी है हमने कि यू कांट इम्प्रूव व्हाट यू कैन नॉट मेजर। अगर डेटा अकाउंटेबिलिटी है तो अगेन वी सी कि इट वर्क्स। पॉलिटिकल विलिंगनेस की बात करिए कि जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है उनको आप रिजॉल्व कर सकते हो थ्रू इनोवेटिव सॉल्यूशंस इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस, ओके। अब इसमें कॉमन सक्सेस फैक्टर आप एजुकेशन में क्या देख रहे हो, ठीक है। टीचर क्वालिटी देख रहे हो कि नथिंग मैटर्स मोर देन हु इज इन द क्लासरूम, आपके टीचर की क्वालिटी क्या है, ना उसके बेसिस पे ही बाकी चीजें डिसाइड हो रही है। जो अर्ली इन्वेस्टमेंट हो रहा है बिफोर द एज ऑफ 6, दैट इज लाइक द प्राइमरी एजुकेशन पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, दैट इज गिविंग मैसिव रिटर्न्स। एंड देयर इज इक्विटी फोकस, दिस इज रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन schools and groups, and that is community involvement. Very important that parents and communities work as partners, work together as this. Now now we have something which is known as flexibility.
जो अभी हमने बांग्लादेश के मॉडल में देखा कि आप कितनी लोकल नीड्स के साथ में, कॉन्टेक्स्ट के साथ में कितनी जल्दी आप अडेप्ट कर पा रहे हो। और इसमें क्या हो रहा है कि लर्निंग क्रेडेंशियल्स, फोकस ऑन एक्चुअल स्किल्स एंड नॉट जस्ट डिग्री, जो हमने देखा भी साउथ कोरिया के कॉन्टेक्स्ट में। सो दीज चीजें, जो 6 चीजें इधर है वो वर्क कर रही है, जब हम उधर की 6 चीजें देख रहे हैं तो वो 6 चीजें वर्क कर रही है। सबसे पहले आपका हेल्थ केयर में क्या वर्क कर रहा है? प्राइमरी केयर फाउंडेशन, रिस्क, आपका कम्युनिटी कनेक्शन कैसा है, प्रिवेंशन पे कितना ज्यादा फोकस है, डेटा है, अकाउंटेबिलिटी है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर पॉलिटिकल विल, सोशल विलिंगनेस भी ये कह सकते हैं व्हेन यू आर टॉकिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब नाउ कॉमन सक्सेस फैक्टर्स इन एजुकेशन हम क्या क्या देख रहे हैं? टीचर क्वालिटी, अर्ली चाइल्डहुड, इक्विटी फोकस, reducing the gap between schools and groups, then community involvement, parents, communities, they are all working as partner, flexibility and learning over credentials. So these are our lessons from other countries that have models that have worked for them. Okay, अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, like giving you the final conclusion, and we see, then we see कि फ्रेमवर्क, जब एक्सेस और इक्विटी की बात होती है, कौन रीच कर पा रहा है, कौन लेफ्ट आउट है, बहुत सारे बैरियर्स है, कॉस्ट के, डिस्टेंस के, इंफॉर्मेशन की, जब हम उसको ओवरकम करते हैं किसी फ्रेमवर्क से, we get access and equity. That model is working for us. When we talk about quality, what is the outcome achieved? How is that quality being measured? वो actually transcend कैसे हो रहा है आपके रियल लाइफ सोशलिस्ट पे? That is your quality improvement. Efficiency की हम बात करते हैं। What is the per cost unit of the outcome? जैसे फिनलैंड का मॉडल is very good, but it's extremely expensive for a population like us. What do cost compared to the other alternatives that they are there? And उसमें आप उसका gain और ये देखते हो, efficiency gain क्या है? Again, sustainability. It is a model of financial viable long term. उसकी sustainability क्या है? कब तक वो चल सकता है? कब तक ये हो पा रहा है? खुद से वो सेल्फ सफिशिएंट कब तक है? वो कब तक फंडिंग पे डिपेंड कर रहा है, गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा है, या वो खुद से ये कर पा रहा है? जबकि इंडिविजुअल्स लीव कर दे रहे हैं तब उसकी क्या कंडीशन है? एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। एक होता है ना कि वो कितने स्केलेबिलिटी, वो आप उसको कितना बिल्ड कर पा रहे हो, उसको आप कितना बड़ा कर पा रहे हो। रिप्लिकेटी की बात करते हैं, ठीक है, कि उस मॉडल को आप एक जगह से उठा के यहाँ पे काम कर रहा है तो हम एक दूसरी जगह पे लाते, तो हम उसको कितना रिप्लिकेट कर पा रहे हो, कितना काम कर पा रहे। एंड देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी, कि वहां पे whom are the providers accountable, वो किसको आंसर कर रहे हैं? ये जो हम मैकेनिज्म इन्फोर्स कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी का, मार्केट, हायरार्की, कम्युनिटी, ये कौन सा है? कौन सी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है और कौन सी प्रॉब्लम आपकी एड्रेस हुई है, ठीक है। So what do you think is the final road ahead for India? We have, we face unique challenges, but because our scale is 1.4 billion people, we face diversity, linguistic challenges है, governance scape है, double burden of disease है, development stage पे है हम। तो एक सिंगल मॉडल किसी कंट्री का उठा के हम ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि दैट विल वर्क। सो जो हमें चाहिए, दैट इज, सबसे ज्यादा तो होता है कि स्मार्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। इंडिया यूनिवर्सल हेल्थ केयर एजुकेशन करेंट लेवल ऑफ स्पेंडिंग जो 3% ऑफ जीडीपी उससे नहीं कर सकते। सो क्वेश्चन इज कि वेदर वी स्पेंड मोर और वेदर वी स्पेंड इट वेल। Then we have something which is smart regulation. Private provision is inevitable, that will there, and it is often even valued, but it should not exploit, rather it should serve the society. Same with your technological deployment. Okay, mobile banking, digital identity, we have UPI, we're growing on our digital front, but same we have to do with health education, to do in next frontiers में, कि वहां पे भी how we deploy technology, ऐसे जैसे हमने deploy करा है, our UPI is considered one of the best in the world. Same we do to our primary sectors. Then we have learning systems, which is like
इवैल्यूएशन कैसा है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी होना चाहिए. There should not be a battle between, rather than ideological battle between your public and private, market and state. साथ में आके सब करो ना, center and government, because that is our main learning system. Community empowerment very important. अगर community को include नहीं किया जाता है, बहुत ही अमेजिंग टॉप प्रोग्राम जो पेपर पे बहुत प्यारे लगते हैं, लोकल नीड्स को मैच नहीं करते हैं, that actually fails and they are not able to have any sustainable results. Same goes with your next point, which is political prioritization. High, we know that healthcare and education cannot produce immediate visible result. आज कल दिन में उसका ये नहीं होगा, but they require sustainable commitment, and this is across political cycles, whichever government is in power or not. This is very important, that health and education remains to be the priority of whoever is in power at that point of time, because उसका कोई ऐसा immediate result तो नहीं होगा, but it is viable in long term में ये होता है. Okay. So these are the very important things जो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं और इंडिया के इसमें देखते हैं, जो हमें चाहिए, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए रोड अहेड है. मैसिव पब्लिक इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल डिप्लॉयमेंट, learning systems, empowering our communities, and politically prioritizing health and education. With that, we conclude our chapter 4. Okay. And we have one more unit left, jiska revision we will do in next class, which is the third unit, which is your second unit, which is basically discussing your models. Abhi tak, I hope you have been with me and you don't have any particular doubt in any section. Okay, I'll run you through the PPT. Please see, and please see if any questions. This was your fourth unit. Before we, let's see, एक दो मिनट के लिए देखो, if any doubt, any है, then we will end the class. मैम और होगी क्लास? जी क्लास हाँ. और होगी मैम? हाँ हर्ष, ओवर हो गई. आपको कुछ डाउट्स वगैरह तो आप बताओ, कुछ पूछना है? नहीं मैम, डाउट्स तो नहीं. ओके, ठीक है. थैंक यू मैम. थैंक यू. Chalo, we'll end the class now. Thank you so much, everyone. See you again next week. Bye.